पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है, पुसू के प्रेसिडेंट हैं नवलदीप, निशांत कौशल जो पहले इलेक्शन जीते थे, उसके बाद एबीवीपी से रहे हैं सुमित रोहल, और उनके साथ दो अन्य साथी भी अब आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट इकाई है इसमें शामिल हुए हैं। नवलदीप, एक बड़ा सवाल है, आप अब तक 2014 से लेकर पुसू में बहुत एक्टिव रहे थे। एकाएक आपने कल चौंका दिया सभी को और आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई में अब आप शामिल हो गए हैं, किस तरह से? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ CYSS ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। इसका नाम क्या होगा? CYSS, इसका फुल नेम क्या है? CYSS छात्र युवा संघर्ष समिति। हाँ जी हाँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब तक आपने इलेक्शन देखे हैं, लीड भी किया है उनको। आम आदमी पार्टी का किस तरह से देखते हैं? स्टूडेंट को किस तरह से कनेक्ट करेंगे? अब इसको लेकर क्या रणनीति है? ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਰੂਹਲ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਅਮਿਤ ਢਾਂਡਾ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਫੇਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ रिटेल करेंगे और जीतेंगे ज़रूर। नवल, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप पे काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी अन्य पार्टियां भी आपको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप उनके साथ जुड़े, फिर आप एंड में आम आदमी पार्टी में गए। वो किस तरह का प्रेशर था? किस किस ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। अभी भी ऑफर दिया था कई पार्टियों ने आपको? ਇਹ ਤਾਂ ਆਫਰਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫਰਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। निशांत कौशल है हमारे साथ, ये स्टूडेंट बॉडीज़ के प्रेसिडेंट भी बने थे उस टाइम जब इलेक्शन जीते थे। निशांत, आपने ये डिसीज़न कैसे लिया और इसमें आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया? कहीं ना कहीं डिसीज़न चल रहा था काफ़ी टाइम से दिमाग में लेने का। जो पॉलिसीज़ रही हैं आम आदमी पार्टी की, चाहे आप दिल्ली मॉडल देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट जो कि नॉट इवन इन इंडिया, इट्स इन आप अब्रॉड तक इस मॉडल की जो इतनी मतलब प्रेज़ हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम उनके साथ जुड़ें, उनसे ये चीज़ें सीखें और हम इन मॉडल को, इस तरह के मॉडल को हम यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें। क्योंकि यहाँ का आप एजुकेशन सिस्टम देखें तो जो लाइक यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कितना यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे ग्रो कर रहा है अराउंड हमारे चंडीगढ़ के। कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है वो गिर रही है। इसको किस तरह से हम आगे लेके आएँ, इन चीज़ों को कैसे बच्चों को इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़ें, कैसे इनको एक्सपोज करें बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, कहाँ मतलब किसी तरह से जहाँ पे प्लेसमेंट्स का देखें बहुत बुरा हाल है और बाकी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है यहाँ आना नहीं चाहते। इसका जो रीज़न, ये जो सबसे बड़े रीज़न यही रहे हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ देखें अगर उस गवर्नमेंट में जो हैं अभी तक हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे इवन पंजाब में इतनी बुरी तरह से आपने उन्हें देखा कि एक मैंडेट मिला है, तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें अगर पंजाब में जो एक एडजेसेंट स्टेट है बिल्कुल, मतलब और इवन एक कैपिटल है चंडीगढ़ उसकी, अगर वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स वहाँ से आ रहे हैं वो वहाँ से जुड़े हुए हैं आइडियोलॉजी के साथ। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी यूनिवर्सिटी में हम वो अच्छा काम कर सकते हैं और हम यहाँ पर उनको जिता के केजरीवाल जी को यहाँ पर पहली बार इंडिया में कहीं CYSS जो पहली बार यूथ विंग लॉन्च होने जा रही है, वो कहीं ना कहीं मतलब हम उसका एक जो आप इतने टाइम से हम इस यूनिवर्सिटी में हैं उसका एक हम भी एक वो रहेंगे, एक पार्ट बनेंगे। बहुत अच्छा लगेगा हमें इस चीज़ के साथ। निशांत, आप पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे जो CYSS को आगे लेकर चलेंगे और उन मुद्दों को आप स्टूडेंट्स के बीच उठाएंगे?
मुद्दे देखिए बहुत कोई बड़ा कुछ करने का है नहीं इस टाइम, मतलब कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिक हम पुरानी ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है लैग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज़, एजुकेशन का अगर आप देखें कि यहाँ पे लाइक स्टाफ की जो शॉर्टेज है, आई थिंक रिक्रूटमेंट लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुई थी यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ की वो 8-8 10-10 साल हो चुके हैं। उसके बाद से बहुत से डिपार्टमेंट में पोस्ट जो हैं आप देखेंगे प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आती हैं, कैंसिल होती हैं, वापस चली जाती हैं। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ में हमें बढ़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें सरकार की भी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ में। तो भगवंत मान जी से हम कल मिले हैं, उन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया इन चीज़ों में। और हमने ये बातें जो बेसिक जो आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हमने बताई उनको, वे आर ही इज़ वेरी पॉजिटिव। तो हमारी 1 या 2 दिन में उनके साथ दोबारा मुलाकात होगी, फिर हम भगवंत मान जी के पास वो लेके जाएंगे अपने मुद्दे। वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके हमें उन चीज़ों का जो भी है जैसे भी होगा इनिशिएटिव फिर हम शुरू करेंगे उनके बाद। हमारे साथ सुमित रूहल भी हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए थे। सुमित, किस तरह से देखते हैं अपनी ज्वाइनिंग आपने CISS में की है, काफ़ी सीनियर लीडरशिप है, इनके साथ आप जुड़े हो, क्या कुछ मुद्दे आप लेके जाएंगे और एबीवीपी से CISS में आना कैसे हुआ? देश में जी जो हालात हैं, एबीवीपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो RSS है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक ऐसी सरकार है जिसने जवानों के साथ भी धोखा किया है, किसानों के साथ भी धोखा किया है पिछले 2 सालों में। तो इन चीज़ों से आहत होके, और एक सबसे बड़ी बात जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ना डिक्टेरियन राज चल रहा है VC साहब का, जिसमें स्टूडेंटों की बात सुनने को वो तैयार नहीं है। कोविड के टाइम में इलेक्शन हुआ नहीं, स्टूडेंट एक्टिविज्म घट गया, उस वजह से हर स्टूडेंट परेशान है। तो जो खुले मन से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो चाहे लीडर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डिपार्टमेंट में हो, मैं उन सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि CISS ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी लड़ाई खुल के लड़ सकते हैं। AVP तो टीचर एसोसिएशन है, वो आज भी एक वार्डन का धरना लगा हुआ है, आप लोगों को पता होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को पता है। वहाँ पे एक पार्टी ऐसी जो वहाँ पे नहीं आती है, वो AVP है। इसका मतलब जब स्टूडेंट और टीचर्स की जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब स्टूडेंट्स के राइट को दबाया जाएगा, तो सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचरों के साथ, जो अथॉरिटी के साथ खड़ी होगी, वो AVP है। अगर कल को AVP यहाँ पे गलती से वैसे जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर जीतती है तो स्टूडेंटों को भी एक चीज़ अपने माइंड में रखनी होगी कि उनका कोई राइट नहीं बचेगा। जो अथॉरिटी कहेगी, चाहे फीस बढ़ानी हो, चाहे मैथ्स की पढ़ाना हो, चाहे टीचर उनको धमकियाँ भी देंगे, तो कोई बीच बचाव का कोई जरिया नहीं रहेगा। तो इसलिए सोच के कि हम असली स्टूडेंट की लड़ाई लड़ना चाहते थे, इसलिए हमने बड़े डिसीजन लिया कि हम AVP में अब आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते। यहाँ तो टीचरों की और अथॉरिटी के साथ ही कम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा। तो ये हमारी आत्मा को माना नहीं, तो हमने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंटली CISS के बैनर के नीचे अरविंद केजरीवाल का जो एजुकेशन और हेल्थ मॉडल है देश में, जो एक ऐसी सोशल सिक्योरिटी डेवलप कर रहे हैं कि स्कूल आपकी अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, तो जो इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम हरियाणा पंजाब की, वो भी काउंटर होगी, उसको भी एक ही सोल्यूशन है। और दूसरा, सबसे क्रेडिबल लीडर जो कहता है वो करता है। 5 महीने में बिजली का बिल माफ़ किया है। एक जुमलेबाज सरकार है जो 10 साल में कुछ नहीं कर पा रही। टाइम पे टाइम 2022 में किसानों की आय दुगनी, युवाओं को रोज़गार, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब एक ही उम्मीद की किरण बची है, वो अरविंद केजरीवाल जी। तो ये सोच के हमने सबने डिसीजन लिया एज ए टीम कि अब अगली लड़ाई अगर देश के युवाओं के लिए, स्टूडेंटों के लिए अगर लड़ सकते हैं, तो उसके लिए अरविंद जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना ही में ही देश उसी में फ़ायदा है, और कोई विज़न बचा नहीं है। कोई पार्टी, कांग्रेस भी देख ली, BJP भी देख ली लोगों ने। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जितना छोटा बड़ा रोल कर सकें उस मेक इंडिया नंबर 1 अगेन, तो उसके लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है नवल, एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहेगी कि अन्य कॉलेजों में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल, CISS ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ करेगी। जो ये प्रेजेंटली अब इलेक्शन होने वाले हैं, ये सब 11 के 11 कॉलेजेस में भी आप पार्टिसिपेट करें? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CISS ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। CISS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। तो स्टूडेंट बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित 11 कॉलेजों में, अब CISS भी लगेगी। ये आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है, जिसको लेकर इन तमाम लोगों से और सीनियर लीडर से हमने बातचीत की, जिनका कहना है कि अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजों में भी स्टूडेंट बॉडीज़ के इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।